students, welcome back in our today's mathematics class. Students, we have started our chapter 6, that is integers. What are integers? All the numbers start from minus infinity to positive infinity. The negative and positive number included 0. They all numbers comes under the integers, right? So today we are going to start our next exercise 6.2. So before starting the exercise, yes, we'll do the introduction about the exercise question. So understand it carefully, student. In 6.1, we have done number line. Yes, we have done many questions on the basis of number line. So today, in this exercise, we'll do the same type of questions. Please understand it carefully because it's very important, student. Right? So today, in this exercise, we'll do addition or subtraction. Addition or subtraction using number line means you will use the number line and you will do addition or subtraction as per the given question, right? So let's start. First of all, as you know, this is number line. In between there is a 0, right hand side positive terms and left hand side negative terms, -2, -3, -4 up to so on. So number line to fine. Now how to add using this number line? The question will be 4 more than 5. 4 more than 5. So student means कि 5 से 4 ज़्यादा. More means you know add, right? 5 से ज़्यादा. Then means 5. 5 से 4 ज़्यादा. So plus means you will add. You will move forward. So 5 times student, here is 5. It means it will get extended 6, 7, 8, 9, 10 suppose. So more than 5. 5 is where? Here is 5. So you have to move 4 steps. 1 step, 2 step, 3 step and 4 step. And you reach at 9. That's it student, nothing else. 4 more than more means 5, you move forward. If the same question will say 4 less, more की जगह is asking less than 5, then 5 से 4 step कम या पीछे, less means minus. So it means 5 is here, so 1 step, 2 step, 3 step, 4 step. So the answer is 1. वैसे भी आप करिए स्टूडेंट, 5 minus 4 is equals to 1 only, है ना? ऐसे subtraction तो की है, but the question is using number line. So you will show the subtraction or addition on a number line. Got it, student? I hope you got this concept. Okay, so this is the concept addition or subtraction using number line. Now coming to our next topic. Now student, next topic is addition and subtraction without number line. अब आपको नंबर लाइन पे नहीं करना. सिंपली जैसे हम जूनियर क्लासेस में करते हैं, सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 200. ठीक है, सो विदाउट नंबर लाइन विल डू दिस सब्ट्रैक्शन और एडिशन. बट स्टूडेंट यहाँ पे पहले हमारे पास टर्म क्या थी? सिर्फ एक टर्म नेगेटिव में थी, बट यहाँ पे दोनों टर्म भी नेगेटिव हो सकती है बिकॉज वी हैव इंटीजर्स. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विदाउट नंबर लाइन. Because integers can be positive, can be negative. So अगर terms में positive, negative ऐसी terms आती हैं, तो what is the rule to solve it? Okay, and this concept is student very important. This will use by you throughout in mathematics. मतलब हमेशा हम use करेंगे mathematics में, कोई भी topic हो चाहे, right? So what are these rules? Please understand it carefully. Suppose आपके पास कोई दो integers हैं और दोनों नंबर, दोनों इंटीजर्स सपोज यू हैव इन प्लस और प्लस, मतलब एक नंबर भी प्लस दूसरा भी प्लस में है. सो व्हाट यू विल डू? यू विल डू प्लस ओनली. ठीक है, इफ वन इज इन प्लस, वन इज इन माइनस, सो व्हाट यू विल डू? यू विल डू माइनस. ओके, इफ वन इज इन माइनस, सेकंड इज इन माइनस, व्हाट यू विल डू? प्लस. Right? And the third, when one is in minus or one is in plus, then also you will do minus only. कहने का मतलब क्या है? जब भी आपके दोनों टर्म सेम होंगे, जब प्लस प्लस है हमने प्लस करना है, अगर वहाँ पे दोनों इंटीजर्स माइनस माइनस के हैं तो हमें प्लस करना है. सेम नंबर के इंटीजर्स हैं हमेशा हम प्लस करेंगे. बट जहाँ पे आएगा
कि एक प्लस का है एक माइनस का है, ओनली इन दैट टर्म विल डू ओनली सब्ट्रैक्शन करना है, मींस विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। फाइन। अब आई बात कि आंसर में क्या करेंगे। जो भी हमारे पास आंसर आएगा, सपोज आंसर 23 है, ठीक है, अगर एक प्लस का है दूसरा प्लस का है तो आंसर में प्लस ही आएगा। अगर एक प्लस का है या एक माइनस का है तो क्या आ सकता है साइन बेटा। हर एक कंडीशन के लिए ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, लर्न वन थिंग, दैट इज हमेशा जो आपका साइन होगा वो होगा स्टूडेंट ग्रेटर डिजिट। मतलब किसी में भी, हर किसी में हमेशा आप ग्रेटर डिजिट का साइन देखो। ग्रेटर डिजिट में प्लस है तो प्लस में आंसर में प्लस, ग्रेटर डिजिट में माइनस है तो माइनस का साइन। नो कंफ्यूजन शुड बी देयर, ओके। बट करेंगे क्या, ओनली यू नीड टू लर्न दिस थिंग स्टूडेंट, दिस इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपली लर्न करने का, सेम साइन के हैं तो प्लस ही करेंगे, डिफरेंट साइन के हैं तो माइनस करेंगे, दैट्स इट। नाउ द लास्ट आंसर निकालने के बाद यू नीड टू चेक जिसका ग्रेटर साइन होगा इस नंबर के आगे वो साइन हम पुट कर देंगे आंसर में, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। आई एम डूइंग 11 माइनस 6। अब देखो ऐसे भी हो सकता है ब्रैकेट में भी, यू नो बोर्ड मास, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 11 प्लस माइनस, प्लस माइनस था तो हम माइनस करेंगे 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब सॉल्व करने की टर्न। ये 11 का कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, यस इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या करेंगे माइनस, 11 माइनस 6 5, आंसर आ गया। अब है आंसर, आंसर में चेक करो ग्रेटर डिजिट में कौन सा साइन है, कौन सा साइन है प्लस का, सो आंसर विल बी +5। Very simple student. So in such a manner you will get the question in exercise 6.2 and 6.3 as well. Okay. So this is all about our today's introduction part. So let's quickly start our exercise questions. Now coming to our question number 1. Using number line write the integer. Very simple student. जो भी condition है number line के help से solve करो और answer you have to write. That's it. So let's first question is 3 more than 5. More आपको पता है 5 से आगे ही होगा तो you will make a number line. No need to write negative integers क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव ही हमें चाहिए। अंडरस्टूड है, लिख भी लोगे डजंट मैटर, बट बेटा एक पूरे आइडिया से चलोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, राइट। सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10, जहां तक भी नेगेटिव इंटीजर्स लिखोगे दैट इज आल्सो फाइन, नहीं लिख रहे तब भी फाइन। नाउ आस्किंग 3 मोर देन 5, 5 से 3 ज्यादा, सो 5 इज हियर 1 2 3, so it will be 8, so the answer is 8. That's it. Move more forward, less backward, right? Now B part, 5 more than -5, मतलब -5 से 5 ज्यादा। अब -5 से ज्यादा है, इट मींस नेगेटिव इंटीजर्स आर ज्यादा हमें चाहिए, सो यू विल राइट 0 1 2 3 4 और इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 up to so on, right? Now where is -5? Here is -5. अब more है, more हम, yes this side is less term, you know left hand side always be less term, more है मतलब आगे की तरफ, right side की तरफ जाएंगे हमेशा, so plus, so 1 step 2 step 3 step 4 step and 5 step will reach at 0, so answer is 0. वैसे भी देखो -5 plus 5 is equals to 0, right student? Now C part, 6 less than 2, 6 less than 2, now 0 1 2 3 4 5 6 7 up to so on. Here is -1 -2 -3. Now question is 6 less than 2, 2 का student, here is 2, right?
2 से लेस, लेस मीन्स सब्ट्रैक्शन, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे कम वाली टर्म की तरफ. सो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड 5 स्टेप. We reach at -3. So the answer is equals to -3 student. Got? Very simple. Fourth part, 3 less than -2. Now again you will make one number line, right? 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Here will be 1, 2, 3 जो भी है. अब -2 से 3 कम. So where is -2? Here. लेस पूछा है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे. 1, 2, 3. So the answer is -5. Got student? Very simple. So this is all about our question number 1. We have done addition or subtraction according to given question on our number line. Okay. So now coming to our next question, question number 2. Now coming to our question number 2, using number line and then add. Again वही है, but student here condition क्या है, अलग तरह की है. Just see first of all, bracket में है terms, ठीक है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे solution में, you will open the bracket first. क्योंकि board marks bracket you need to solve first. कोई भी काम करने से पहले. So first solve bracket 9 plus minus 6. ठीक है. सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें नंबर लाइन पे उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है नंबर लाइन पे करना है, राइट. सो वी हैव 9 minus 6. सो मेक अ नंबर लाइन. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right? So here would be -1, -2, -3 up to so on. क्या है स्टूडेंट, यहाँ है 9. अब 9 डायरेक्ट तो हम 9 पे नहीं जा सकते हैं, ऑब्वियस है. हम करेंगे हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट, क्योंकि जब ऐसे कंडीशन 9 कैसे पहुंचे हम, 0 + 9 ही होता है. सो फर्स्ट हम 0 से पहुंचे डायरेक्ट 9 पे, राइट. नाउ नेक्स्ट इज -6. वहां आपको मोर या लेस पूछा जाता था, यहाँ पे आपको मोर लेस नहीं, ऑलरेडी साइन गिवन है. माइनस मतलब बैक साइड, मतलब लेफ्ट साइड आना है, पीछे लेस है ना. सो 6 स्टेप लेस. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 9 से यू रीच एट 3. डायरेक्टली लिख लो या आप स्टेप भी बना सकते हो, 1, 2, 3, योर चॉइस ओनली स्टूडेंट. सो पहले हम गए 0 से 9, फिर 9 से हम आए 3 पे. सो द आंसर इज 3. वैसे भी आप देखो स्टूडेंट, 9 minus 6 3 ही आता है, बट वी विल डू यूजिंग नंबर लाइन. ओके. कमिंग टू बी पार्ट, अगेन वी हैव ब्रैकेट. सो 5 minus 11. सो लेट्स मेक नंबर लाइन. 0, 1, 2, 3, 4, 5. आपको पता है पीछे ही आना है ना. -1, -2, -3, -4, -5, -6 up to so on 7, 9, 5. 0 से हम पहले कहाँ पहुंचे, 5, दिस डायरेक्शन. अब -11 बैक साइड. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So directly 5 से we reach at -6. So answer is -6. राइट स्टूडेंट. सिंपली -11 उतने स्टेप पीछे आओ जहां पे पहुंचे वो उसका आंसर, राइट. नाउ दिस इज बी पार्ट. सो स्टूडेंट्स, सी एंड डी पार्ट इज होमवर्क फॉर यू, which is based on this only. So C and D part is homework for you. Okay. I have done here E part क्योंकि इसमें 3 नंबर्स थे. So what? Method तो वही है, right? So first of all, open the bracket. Let's start to open. -1 plus minus -2 plus minus 3. Open कर ली ब्रैकेट. अब वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इट विल बी इजी, बट क्वेश्चन में नंबर लाइन बोला है तो नंबर लाइन पे ही करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट मेक नंबर लाइन. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. Here would be -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8
अप टू सो ऑन। देखेंगे कितना चाहिए। फर्स्ट इज -1, 0 से -1 पे गए। नाउ -1 से अगेन -2, साइन मत देखो पहले, 2 स्टेप हमने आना है। अब आगे या पीछे, माइनस है मतलब पीछे, सो इट मीन लेफ्ट साइड 1 स्टेप 2 स्टेप, कहाँ पहुंचे हम -3। स्टूडेंट ये इसलिए नहीं बनाना क्योंकि हम -1 से 2 स्टेप पीछे है, तो डायरेक्ट हम पहुंचे -3 पे। ठीक है, अब -3 के पास पहुंचने के बाद अगेन स्टेप इज देयर, 3 स्टेप मोर पीछे, बैक साइड लेफ्ट साइड, सो 1 2 3, सो 3 से डायरेक्ट 3 स्टेप पीछे, सो वी गॉट -6। Very simple student, you need to be vigilant, sign and step. Okay, now F part, -2 plus 8 plus minus -4. Right, now make a number line. Number line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं तक भी जा सकते हैं। Here will be -1 -2 -3, I don't know what is the answer, let's check it out। पहले है -2, 0 से we reach at -2, right। अब -2 से 8 स्टेप आगे, प्लस है तो फॉरवर्ड मीन्स राइट साइड, सो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 7 8, so it means -2 से we reach at 6, राइट। सो -2 से 6 स्टेप आगे, 8 स्टेप आगे, तो वी रीच एट 6। अब 6 के बाद 4 स्टेप पीछे, -4 है, 4 स्टेप पीछे स्टूडेंट, सो 6 से 1 2 3 4, सो वी रीच एट 2, सो द आंसर इज 2। स्टूडेंट ये लाइन से कंफ्यूजन क्रिएट मत होना, मतलब डोंट बी क्रिएट एनी कंफ्यूजन विद दीज लाइंस। दीज लाइन आर जस्ट टू शो कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे, दैट्स इट। ओके, सो -2 पे पहुंचे थे पहले, -2 से 8 स्टेप आगे गए तो 6 पे पहुंचे, फिर 6 पे पहुंचने के बाद हम -4 4 स्टेप पीछे आए, लाइक यू आर डूइंग अ गेम, प्लेइंग अ गेम, 8 स्टेप फॉरवर्ड 4 स्टेप बैकवर्ड, where we reach at 2, so 2 is the answer। I hope you got these questions, these questions are very simple। Now this is all about question number 2, now coming towards question number 3। now coming to our question number 3 student, add without using number line। अब हमें सिंपली करना है, तो स्टूडेंट जब भी ऐसे टर्म आए यू ऑलवेज मेक दिस वन सो दैट यू विल गेट इजीली, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, सो ऑलवेज मेक दिस, और नीचे क्या देखोगे आंसर का साइन ऑलवेज इज इक्वल्स टू ग्रेटर डिजिट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट ए पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट, 11 प्लस माइनस -7। ओके, सो 11 - 7 पहले तो ये दिख रहा है, बट यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस माइनस we will do minus, so 11 - 7 4, एंड अब आंसर में क्या लिखेंगे ग्रेटर डिजिट साइन, ग्रेटर डिजिट इज प्लस का, सो आंसर इज +4, राइट। नाउ हियर बी पार्ट, ओपन द ब्रैकेट, -13 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। अब ओपन ब्रैकेट करने के बाद नाउ सॉल्यूशन, -13 प्लस 8, एक माइनस का एक प्लस का, वी विल डू माइनस ओनली। जब भी दो साइन डिफरेंट होंगे हमेशा हम माइनस करेंगे, सो 13 - 8 इज 5। अब आंसर तो आ गया, आंसर में ग्रेटर डिजिट का साइन, सो ग्रेटर डिजिट 13 है, 13 का साइन माइनस का है, सो -5, दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल स्टूडेंट। नाउ सी पार्ट, -10 प्लस 19, नाउ विल डू, दोनों साइन डिफरेंट है तो करेंगे माइनस, 19 में से 10 गए 9। अब आंसर बिगर डिजिट प्लस का है, सो आंसर इज +9, राइट स्टूडेंट। डी पार्ट, पहले ओपन द ब्रैकेट, -250 प्लस 150, नाउ डू दी सब्ट्रैक्शन, दोनों साइन
डिफरेंट है, सो 250 में से 150 गए तो 100 आंसर आया। अब आंसर में साइन भी चेक करना है, किसका ग्रेटर है, 250 का, सो 250 में माइनस का साइन है, सो आंसर इज -100। तो इंटीजर्स में सिर्फ ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस वैसे ही करना है, बट साइन आंसर में जरूर साइन चेक करना है। ओके, सो लेट्स सी हियर ई पार्ट -380 और प्लस माइनस -270। अब स्टूडेंट दोनों साइन सेम है, तब एक माइनस का और एक माइनस का है। स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे, माइनस का तो माइनस तो करेंगे 380 से 270, इंटीजर्स है स्टूडेंट, उसके आगे भी माइनस का साइन है, तो फॉर्मूला दोनों साइन कभी भी सेम है, चाहे वो प्लस के हैं या माइनस के, करेंगे हम प्लस ही। सो 380 प्लस 270 इज 650। अब आंसर में ग्रेटर डिजिट का साइन, पहले तो दोनों ही माइनस के हैं, ऑब्वियस है माइनस के आएगा, पर फिर भी हम ग्रेटर डिजिट देखेंगे, ग्रेटर 380 के आगे माइनस का साइन, क्योंकि हम एक ही क्राइटेरिया करें, नो कंफ्यूजन, आंसर में ग्रेटर डिजिट का साइन, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एफ पार्ट -217 प्लस माइनस -100। दोनों साइन क्या है स्टूडेंट, प्लस के, so we will do, sorry, both the sign are negative, so करेंगे प्लस 100 plus 217, that is 317। साइन बिगर डिजिट के आगे माइनस का साइन, so it is -317 आंसर। I hope student you got, please learn this formula, these are very important student, okay, और अभी समझ जाओगे, this will be very easy to you throughout in mathematics, okay, so this is all about question number 3. Now coming to our question number 4. Now coming to our question number 4, student, question number 4 is find the sum. Again we have integers and we will do the addition, but इसमें क्या है student, एंड की फॉर्म में क्वेश्चन है, सो व्हाट, जहां एंड है इट मींस दोनों टर्म्स को हमें क्या करना है, प्लस, इक्वेशन है फाइंड द सम, राइट। सो ए पार्ट वी हैव 137 एंड मतलब प्लस इज दिस 354, तो जब भी में और माइनस में है ऐसी टर्म होगी, पहले स्टूडेंट हम इसकी एक इक्वेशन, पहले आपको ऐसी इक्वेशन दी जाती थी, देन वी नीड टू सॉल्व, अब आपको ये इक्वेशन भी यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू मेक, because question में and है, and का means sum. Now you got the condition, now you will solve simply. First open the bracket, 137 plus minus 354. Method वही है, again एक प्लस का और एक माइनस का, but you will do subtraction. So 354 minus 137 is 217. Okay, and yes, so plus minus साइन किसका डालेंगे, बिगर डिजिट, दैट इज माइनस ओनली, सो दिस इज द आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट -52 एंड मींस प्लस 52। नाउ क्लियरली दिख रहा है, एक माइनस का एक प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 52 में से 52 गए, आंसर इज 0 ओनली। अब साइन का तो देयर इज नो नीड टू सी, 0 कैन, 0 is 0 only, no negative, no positive. Okay, so here is C part. पहले हम एक फॉर्मेशन करेंगे according to given term, -213 comma means plus 39 and मतलब plus 192. Like equation number 2 we have done 3 terms number line पे, अब हमें 3 terms ही करनी है but without number line. Method वही है. Now see, ऑब्वियसली तीनों को एक साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते, फर्स्ट वी विल टेक 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स ली हमने, राइट, या आप ये भी कर सकते हो, ये प्लस प्लस है, दोनों को पहले प्लस कर लो, जो आंसर आएगा, योर चॉइस ओनली स्टूडेंट, व्हाटएवर यू विल डू, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है। सपोज 213 मैं नहीं सॉल्व कर रही, आई एम सॉल्विंग दीज 2 टर्म्स फर्स्ट, सो 39 प्लस 192, 9 10 11 9 10 11 13 and then 231, इन दोनों को प्लस करने के बाद 231, साइन दोनों का प्लस का है, सो प्लस का साइन, राइट। नाउ माइनस प्लस दोनों डिफरेंट साइन करेंगे हम माइनस, ओके, सो 213 minus 231,
लिखा चाहे वैसे है बेटा, पर आप माइनस कैसे करोगे, बिगर डिजिट ऊपर, 231 में से 213, ठीक है, लिखा कैसे भी हो, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्लस माइनस माइनस करेंगे हम, माइनस माइनस कैसे करेंगे, बिगर टर्म ऊपर स्मॉलर टर्म नीचे, सो 11 minus 3 8, 2 minus 1 1, so answer is 18, ठीक है। अब नाउ साइन की टर्म, विच साइन स्टूडेंट, ग्रेटर डिजिट कौन सा है, 231 प्लस का है, सो इट मीन्स प्लस 18, got student, very simple। now t part we have minus 50 comma means plus 200 and 300, now solve it सिंपली। पहले दोनों प्लस के हैं, इन्हें प्लस कर लेते हैं, माइनस 50 विल रिमेन एज इट इज ओनली, क्योंकि इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे, 3 + 2 500, नाउ विल डू सॉल्व द क्वेश्चन, दोनों ही डिफरेंट है तो करेंगे माइनस, 500 में से 50 गए, ऑब्वियस है 450, साइन आंसर में ग्रेटर डिजिट, इट इज ऑफ प्लस, सो आंसर इज 450, दैट्स इट। It's very simple student, you need to only understand this formula, that's it, okay। So this is all about question number 4, now coming to our question number 5, coming to our last question for this exercise, question number 5, a part, -7 plus -9 plus 4 plus 16, earlier we have done 2 terms, then we have added 3 terms, now we have 4 terms, but the method is just same only student, right? Let's see, first of all open the bracket, so -7 plus -9, it is already plus 4 and plus 16, right? Now student, you can do one thing, एक एक करके you can solve, or you can pair two terms, क्योंकि 4 है, दो terms हम बना सकते हैं, two terms you can make and then you will solve at the last में आपकी 4 से 2 terms रह जाएंगे, then you can easily solve। Are you getting what I am saying? See, -7 -9, both terms are in minus, करेंगे क्या student, plus, so 9 plus 7 that is 16, अब साइन आंसर में दोनों माइनस के हैं तो माइनस के, although you can see greater digit of minus only, now इन दोनों का पेयर बनाया, दोनों प्लस के हैं, साइन will be of plus only, 16 plus 4 20, right? Now we got 2 terms, so -16 plus 20, both terms are of different terms, so we will do subtraction, 20 minus 16 is 4, now answer में sign will be greater digit, so greater digit of 20 of plus, so answer is plus 4, right student, very simple। So this B part also you have, but this question is homework for you, this question you will solve by your own, so I have given only 3 questions as a homework, 2 parts in question number 2 and 1 part in this question, okay। So this is all about our exercise 6.2, I hope you got this exercise student, and basically in this exercise we have learned this topic, this sign 1 topic, which is very important in teachers, okay। So you have to make also in front of the questions in the notebook, in your notebooks, so thank you so much for watching, that's all for today's class, bye students।